Hey guys, welcome back to the channel. You have some question mark, and today we are going to do the fundamental unit of life, class 9, part 2. So this is the continuation of class 8 cell. So let's start. What are the three common features of every cell? So basically there are different types of cell like bacterial cell, animal cell, human cell, plant cell. And these three are basically most common in all of them. Plasma membrane, which is the cell membrane, it is important because it gives a shape. Then is nucleus, which is the brain, और हर cell में या हर body में तुम देखोगे brain होता है. So similarly in the cells also brain is there, which is the nucleus. Then comes cytoplasm. Cytoplasm is the main substance, jelly-like substance, which contains other organelles. ये तो हो गया three common features of every cell. अब आते हैं why is cell membrane called a selectively permeable membrane? सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? देखो, आंसर शुरू करने से मैं बता दूं कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लेना. और सेल कंटिन्यूएशन, ये चैप्टर क्लास 9th में सेल का, क्लास 8th का सेल जो है वो 9th में कंटिन्यूड है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से. सो वो वीडियो हमने भी बनाया है सेल, सो उसे भी देख लेना अगर उसने देख लिया है. So this will be much more clear if you have watched that video. So let's start. This is because it allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. So मतलब ये वो एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है. Actually it allows and permits, वो एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क करता है. किसी को अंदर आने और बाहर जाने देता है कुछ सब्सटेंस को, ठीक है. On permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other material. It also prevents movement of some other material. मतलब वो किसी और मटेरियल का मूवमेंट प्रिवेंट करता है, समझे? इसका मतलब ये वो किसी और किसी और सब्सटेंस का, किसी और मटेरियल का मूवमेंट को रोकता है, प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है. Then comes some substances like CO2 और O2. अभी आते हैं CO2 और O2. CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. and what is O2? Oxygen. So some substances like CO2 और O2 can move across the cell membrane by the process of diffusion. अब आते हैं diffusion क्या है? सोचो diffusion है, O2 and CO2 गैस है, लेकिन वो कैसे आ जा सकता है जबकि सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टिंग? तो अब देखो, डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है उसमें इट इज़ एक्चुअली प्रोसेस इन द मूवमेंट, इट एक्चुअली ड्यूरिंग द डेफिनेशन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ हायर एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इट इज़ नोन एज डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन मतलब हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया जो है वहाँ से मटेरियल मूव करके लोअर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में आता है. सो अब एग्जाम्पल्स के भी देख लो यार. सपोज मान लो एक गड्ढा है और एक प्लेन रोड है, ठीक है. सो उस गड्ढा को फिल करोगे, राइट, ठीक है. सपोज एक ओवरफ्लो हो रहा है इस साइड और इस साइड एकदम कम है, मतलब सपोज मिडिल में है और ये पूरा भरा हुआ है, ऊपर फ्लो और ओवरफ्लो ही हो रहा है. सो व्हाट विल हैपन? इट विल गो इनसाइड दिस. ओके. सो सिमिलरली ये होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया जिसमें हाई है क्वांटिटी, वो लोअर क्वांटिटी में चला जाता है. देन दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस वन. So let's start. How diffusion plays an important role in the gaseous exchange. Explain with an example. अब देखो gaseous exchange हुआ, जो मतलब gaseous CO2 और O2 क्या है? It is what? It is means these both are gases. So let's start. Some substances like CO2 accumulation in high concentrations of CO2 is lower compared to that inside the cell. देखो, अब ध्यान से इसको पढ़ोगे तो some substances like CO2 accumulation in high concentrations of CO2 is low as compared to that inside of the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to the inside cell. Suppose तुम breathe कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हारे आसपास का जो CO2 है तुम्हारे बॉडी के CO2 से कम होगा. सो मतलब वो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड है और बॉडी में तुम्हारे ज़्यादा CO2 होगा क्योंकि तुम CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो. सो CO2 हायर कॉन्सेंट्रेटेड होगा. सिमिलरली सेल्स में भी होता है, सेल्स में भी CO2 आता है, प्रोड्यूस होता है. तो CO2 इसमें ज़्यादा होगा और आउटर इन्वायरमेंट में कम होगा.
सो व्हाट विल हैपन, मूवमेंट जहाँ हमें पढ़ा डिफ्यूजन के प्रोसेस से, सो डिफ्यूजन क्या है, हायर मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सिमिलरली इन द सेल सेक्शन में ये हो गया, एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस, okay, difference concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from, अब यहाँ पे स्टार है, यहाँ से यहाँ कंटिन्यू सीधा हो गया, from a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. अब ये तुम समझो ही नहीं, ये जरूरत नहीं, क्योंकि मेन डिफ्यूजन तुमको याद रखना है. इसका आंसर होगा, ये जो सिंपल अगर आंसर देना है वन वर्ड में, सो दिस द वन वर्ड आंसर शुड बी डिफ्यूजन. ओके, अब आते हैं सिमिलरली O2. अब देखो ये तो हम लोग CO2 का बात कर रहे थे, तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, सो ऑक्सीजन ऑल्सो फॉलोज द सेम मेथड, ओके, द सेम मेथड ऑफ डिफ्यूजन. यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए. अब आता है व्हाट इज ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. इसका मतलब ये होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है उसको क्या कहेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. का मतलब यहाँ पे हमें पढ़े हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन. सो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन से, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ओके, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. So please like, subscribe and share my channel and check out my other channel Factworm, and please subscribe that. And that's it for today's video. I think you like this video. If you like, please click the like button, and if don't like, please click the dislike button. And that's for today's video. I hope you enjoyed. Thanks for being patient listeners.